welcome. I'm your host, Mansi. Patrika has come up with its latest campaign called hashtag Progressive Mindset, जहां हम बात करते हैं उन advanced topics, ideas or concepts की that are going to define our future. हाय एवरीबॉडी, आई एम आरजे शिवांगी एंड आज ये जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है इसका टॉपिक है फाइटिंग पीयर प्रेशर एंड द नीड फॉर सोशल वैलिडेशन। हमने देखा है बहुत सारे बच्चे पीयर प्रेशर से लड़ते हैं। उनको लगता है कि ये जैसा कर रहा है या मतलब मेरा जो फ्रेंड है वैसा कर रहा है, मुझे भी वैसा करना चाहिए ताकि लोग मुझे सोशली एक्सेप्ट करें, या फिर इसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। तो एक तरीके का प्रेशर क्रिएट होता है जो कि एक कंसर्न का टॉपिक है पेरेंट्स के लिए भी। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ दो काफी पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं। पहले हैं आनंद कुमार सर, जिनको हम सब जानते हैं, जिन्होंने सुपर 30 जैसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की है एंड ऋतिक रोशन की मूवी भी बेस्ड है इन्हीं पर। ऑल्सो सेकेंड हमारे साथ में है अमिताभ सर, जो कि काफी रिनाउंड प्रोड्यूसर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, जो कि एसोसिएटेड थे विद द मूवीज लाइक खोसला का घोसला एंड चिल्लर पार्टी, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग मूवी है। सर, वी वेलकम यू। Amitabh ji, I'd like to ask you a question. सर, आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया भी बच्चों में पीयर प्रेशर बढ़ाने का रीजन बन चुका है. You know, teenagers and adolescents these days want to make their presence felt on social media just like their peers. तो आपको क्या लगता है कि seeking social media validation for kids these days, is it healthy? Yeah, thank you, Manasi. Thank you for asking this kind of a question. The question that you have asked, it's very complex in nature, and I would not like to address it in any oversimplistic or oversimplified way. Right. The fact is that we humans, we are social people, right? As humans, we are all social. We are meant to be social. Yeah. The reason that we have made such a progress in the animal kingdom is because we are social, right? Yeah. And the fact is that our being social gives us a host of advantages when we compare it to, say, other animals in the animal kingdom. So what I'm trying to reiterate here again and again is that we are social and we will continue to remain social. And the fact is that there is, there is no denying the fact or running away from the fact. Now, what has happened is that with the intervention of technology and with the intervention of, this borderless, limitless, timeless sort of facility which has become very critical in our day-to-day lives, which we call as social media now, is something which, our bodies and minds are not, they are not kind of prepared or trained automatically. It is something which is, I would say, which is not natural. And that is why you may also be familiar with a word whereby it is often referred to as a virtual world. So when we talk about it as a virtual world, we are somewhere trying to distinguish it against a real world. So the thing is that our bodies, our minds, our existing capabilities are over the period of evolution, they are somehow evolving, developing into a natural world. And this technological intervention which has come into our lives, our day-to-day lives, is something which is not natural. It is virtual. And that is why it is now, to my mind, of a great significance that we become alert about it, we become aware about it, and then we put in methods and practices through which we are able to train ourselves, to tackle this kind of intervention for which the nature has not prepared us for. Right. So I mean, as an overarching statement, what I can say is that
The intervention of social media in our lives is not natural. It is virtual, and we will need to prepare ourselves to be able to steer or navigate around it. And for every person, for every individual, for a cluster, for a community, for a group of people, the methods and practices may vary. Again, there cannot be one oversimplified solution that will fit all. So that will be my holistic view about this particular challenge that we are facing now. मेरा सवाल आनंद कुमार सर से है। सर, कौन सी एज में पता चलता है कि बच्चा पीयर प्रेशर से फाइट कर रहा है, या कौन सी एज में वो पीयर प्रेशर फील करने लग जाता है? बहुत अच्छा लगा अमिताभ जी को सुनकर। नमस्कार अमिताभ जी, आपकी फिल्म हमने आज से कुछ साल पहले अपने वाइफ के रिकमेंडेशन पर देखी थी, ओखला का घोंसला, और जिसमें किस तरह से फिल्म की अच्छी स्क्रिप्ट थी, डायरेक्शन था कि मजा आ गया। कि कैसे एक मिडिल क्लास का जो बंदा रहता है, एक आदमी रहता है, मिडिल क्लास फैमिली एक ड्रीम देखता है, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, वो ग्लैमर में फंसता है, और वो ग्लैमर में फंस के एक मकान को बुक करना चाहता है, एक जमीन खरीदना चाहता है, और वो भी अपने सपनों को वैसे ही देखना चाहता है जैसा आज वर्चुअल दुनिया है। इसमें अमिताभ जी ने दिखाया कि फिर उस जाल से वो कैसे निकाल के दिमाग लगा के जमीन बेच देता है। देखिए, मैंने आपकी फिल्म देखी, बहुत अच्छे आप राइटर है, जितने अच्छे आप डायरेक्टर, राइटर, ठीक है, जो कुछ भी है उतना आपको अभी सम्मान मिलना बाकी है। इसलिए मैं सम्मान करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और इन बातों को तो अमिताभ जी ने पहले ही दिखा दिया कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो ग्लैमर की दुनिया देखता है, वो वैभव की दुनिया देखता है, वो पूंजीवाद से प्रभावित होता है, और धीरे धीरे उसको भी लगता है कि जब वो गलियों से गुजरता है तो उसको लगता है कि भाई एक कोई मर्सिडीज लेके जा रहा है, कोई ऑडी गाड़ी लेके जा रहा है, उसके पास साइकिल होता है, और लोग ऑडी वाले का महत्व इसलिए देते हैं कि उसके पास पैसे है। अच्छे ड्रेस पहनने वाले लोगों का महत्व इसलिए देते हैं कि उसके पास अच्छे ड्रेस है, पैसे। बिजनेस क्लास में जाके बच्ची बना रही थी वीडियो, जबकि इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल कर रही थी, क्योंकि दुनिया बिजनेस क्लास वाले को महत्व देती है, उनको सबसे आखिरी में बैठाती है, सबसे पहले उतारती है, अलग से खाना देती है, तो उनमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम स्पेशल हैं। तो एक ह्यूमन नेचर होता है स्पेशल बनने का। तो अभी जो वर्चुअल वर्ल्ड आया है उससे और दबाव बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं आरजे बनना चाहता हूँ, वो उसकी अपनी इच्छा नहीं होती है, समाज में देखकर जो दबाव महसूस करता है उससे होती है। और आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि आजकल तो बच्चे हाई स्कूल के पहले मिडिल स्कूल में ही जाते, जैसे ही प्राइमरी से आगे बढ़ते दबाव में आना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में कहते हैं कि अरे एक स्कूल में आज पार्टी हुई है, इस पार्टी में तो 5 स्टार होटल में हमारे दोस्त ने दिया, और वो मिडिल क्लास का बच्चा है बेचारा, उसके फादर को पर क्या बीतती होगी। तो जो ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों ने राजस्थान पत्रिका ने उठाया है कि बच्चे दबाव में आते हैं। तो मेरा मानना ये है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि जो भी मुझे सुन रहे हैं या कल अखबार में पढ़ेंगे, उनको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आप क्या इस पर भरोसा करिए, आप में कभी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। आज हमारी प्रसिद्धि हुई, लोग सम्मान दिए, फिर भी मैं वही पैंट शर्ट पहनता हूँ जो आज से 20 साल 25 साल पहले पहनता था। 25 साल पहले जो खाना खाता था वही खाना खाता हूँ, वैसे ही गाड़ी है, वैसे ही मकान है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दूसरों से प्रभावित होने के बजाय अपने आप को विकसित करें, अपनी प्रतिभा को निखारें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, और ओखला का घोंसला जैसी फिल्म जैसे निर्माण किया वैसे ही कुछ नया करें। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Amitabh, sir, I'd like to ask you a question now. So while shooting for films, some artists get introduced to limelight at a very early age and some don't. So what kind of pressure do child artists feel? मतलब उनके में क्या कुछ ऐसा होता है कि उनमें कोई comparison की भावना है, या उनमें कुछ एक दूसरे में कुछ इस तरीके का आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आप फिल्म शूट करते हैं? तो मानसी, मैं थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। आनंद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक ये
क्लैरिफिकेशन ऑफर करूंगा कि खोसला का घोंसला मैंने एज अ सिनेमाटोग्राफर शूट किया था। उसके जो डायरेक्टर हैं श्री दिवाकर बैनर्जी, उन्होंने डायरेक्ट किया था, और उसका जो लेखन है वो श्री जयदीप साहनी और दिवाकर दोनों ने मिलकर लिखा था। तो उस समय मैं एज अ कैमरामैन मैंने उसको शूट किया था फिल्म को। लेकिन ये अवश्य है कि उस पूरे फिल्म बनाने की प्रक्रिया में जो भी एक क्रिएटिव पार्टिसिपेशन हो पाता है वो तो मैं हमेशा रखने की पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ। तो मानसी नाउ, आपका जो प्रश्न है उसमें देखिए, मैं थोड़ा सा अपने पिछले आंसर और पिछले प्रश्न से और जो आनंद सर क्या जो एक थॉट है उसको लेके तो आगे बढ़ना चाहूंगा। द थिंग इज दैट वी आर सोशल पीपल, राइट? मतलब हम लोग सामाजिक हैं, प्राणी हैं, एंड द फैक्ट इज दैट it may be slightly counterproductive to look at a child in isolation. अगर हम किसी भी बच्चे को बिल्कुल आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो शायद थोड़ा सा वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो नेचुरली बच्चा है, एक परिवार से जुड़ा हुआ है, एक सोशल सिस्टम, एक इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, एक समाज से जुड़ा हुआ है, और फिर देश, राष्ट्र, दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो जहां तक के बच्चों की दुनिया का प्रश्न है, और जहां तक मैंने उसको थोड़ा सा देखा है या थोड़ा सा उसको भांपा है, वो ये है कि 8 बच्चे, 10 बच्चे, 25 बच्चे, आप उनको उनके डिफॉल्ट इकोसिस्टम से हटा करके किसी एक न्यूट्रल इकोसिस्टम में डालते हैं। अगर हम ये कहें कि भाई एक फिल्म मेकिंग, एक फिल्म प्रोडक्शन का जो एनवायरनमेंट है वो मान लीजिए कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, और वहां पे 20-25 बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो उनका जो एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है, एक बहुत ही स्वाभाविक इंट्यूटिव इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है बच्चों के बीच में जो आपस में घुल मिल जाती है, वो मुझे लगता है कि एक अनूठी होती है। देयर इज समथिंग यूनिक अबाउट इट। जब बच्चे आपस में एक दूसरे से 1-to-1 लेवल पे जुड़ते हैं, और कहीं पे शायद वो अपने पेरेंटल बायसेस को या सोशल बायसेस को या इनको छोड़ करके कहीं आपस में जुड़ते हैं, तो शायद वो एक पॉइंट के बाद मैं मर्सिडीज से आया हूं या मैं साइकिल से आया हूं, वो डाइल्यूट हो जाता है, और वो एक बहुत ही, मैं बोलूंगा एक बहुत ही इनोसेंट स्पेस में जाकर के कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, और उनके बीच में एक परस्पर एक इंट्यूटिव बैलेंस, इसको मैं कहूंगा कि परस्पर एक इंट्यूटिव बैलेंस बन जाता है। तो मुझे लग रहा है कि हर बच्चा अपने अंदर एक बहुत ही खास, कुछ बहुत ही एक स्पेशल लाइफ फोर्स लेकर के रहता है, आता है, और जब वो आपस में रहते हैं तो उनका एक बैलेंस अपने आप, मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनिक सा बैलेंस अपने आप बन जाता है। जब हम एक फिल्म प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हम जरूर ये देखते हैं कि बच्चों में एक केमिस्ट्री डेवलप हो जाती है, बट वो केमिस्ट्री स्क्रिप्ट के कैरेक्टर के अनुरूप डेवलप हुई है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बच्चा कैरेक्टर में, स्क्रिप्ट में हीरो है वही शायद ऑफ स्क्रीन हीरो हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत मुमकिन है कि ग्रुप डायनेमिक्स में कोई रियल लाइफ में कोई दूसरा ही बच्चा थोड़ा सा हीरो टाइप या कैप्टन टाइप या थोड़ा लीडरशिप टाइप रोल में आ जाए, whereas जो ऑन स्क्रीन जो बच्चा लीडर या कैप्टन या कुछ हो रहा है वो शायद तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मेरा संदेश बच्चों को लेके ये रहेगा कि आप नेचुरली आप सिनेमा देखते हैं, वर्चुअल लाइफ देख रहे हैं, स्क्रीन लाइफ आप इतनी सारी अनुभव कर रहे हैं, और ये जो सारी स्क्रीन लाइफ है वो एक लेवल पे इंस्पायरिंग जरूर है, उसमें कहीं ना कहीं एक हमें प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा को लेकर के फिर जैसा आनंद सर ने कहा कि हमें अपने अंदर जो एक निहित जो एक स्पेशलाइजेशन है, जो एक खासियत है, जो एक खूबी है, उसको निखारना है, उसके ऊपर काम करना है, और मतलब उसमें हम कितना अच्छा कर सके, कितना उन्नति कर सके, कितना उत्कृष्ट हो सके, मुझे लगता है कि वही काम रियल वर्ल्ड में हर बच्चे को, हर एडोलेसेंट को अपने लिए थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और वो जो ढूंढने की प्रक्रिया है मुश्किल वहीं पे है।
जी, जो सर्च है ना वो सर्च मुश्किल। राइट, और उस सर्च में मतलब कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आनंद सर का सानिध्य, उनकी गाइडेंस, उनका लीडरशिप, उनकी ट्रेनिंग सब कुछ प्राप्त हुआ है, और मुझे लगता है कि जो गुरु का स्थान है वो तो मतलब सर्वोच्च है। या ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि पीयर प्रेशर में रिकग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस इज द नेक्स्ट स्टेप। एक बार हमें ये पता चले कि वी कैन रिकग्नाइज कि बच्चा इज अंडर सम प्रेशर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरे को लगता है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो इसीलिए मैं आई बैक टू माय इनिशियल थॉट कि भाई बच्चा एक आइसोलेशन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, जी, बच्चा एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। और उस इकोसिस्टम में जो भी मान लीजिए उस बच्चे के केयर टेकर्स, केयर गिवर्स, को हैबिटेंट्स, पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बात की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि वो बच्चा एक लेवल पे अपने मन की बात या अपना जो भी उसके चैलेंजेस उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे लग रहे हैं, तो उसको वो एक्सप्रेस कर सके और उसको शेयर कर सके। क्योंकि एक चीज मैं सबसे कहना चाहूंगा, खासतौर पे बच्चों से, कि again we don't exist in isolation, everything is a team work। आप जितने भी आपके जो भी सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन या पर्सनालिटीज ऑफ इंस्पिरेशन होंगे, ये जरूर है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एक खास बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि दे आर पार्ट ऑफ अ टीम। उनके आसपास एक ऐसा ह्यूमन सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो उनको हमेशा किसी न किसी लेवल पे एक बल प्रदान करता रहता है। तो अगर किसी बच्चे को, किसी एडोलसेंट को ये लगता है कि उन्हें कोई थॉट, कोई फीलिंग, कोई सिचुएशन किसी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं उसको हमेशा उसका बढ़ावा दूंगा और मैं कहूंगा कि आप जरूर आगे बढ़िए और आपकी जो भी परेशानियां हैं या दिक्कतें हैं वो आप किसी से शेयर कीजिए। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट सवाल मेरा आनंद सर से है। आनंद सर, जैसे कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स, तब भी एक तरीके का पीयर प्रेशर है, वो झेलते हैं। तो ऐसे में क्या आप टिप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, ताकि वो इस प्रेशर से दूर रहें और खुद को मोटिवेटेड रखें, अच्छा परफॉर्म करें कंपटीशन एग्जाम्स में? देखिए, प्रेशर से बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मेहनत। अगर हम फिल्म शूट करना की कोशिश करते हैं, फिल्म शूट करने की, और कैमरा चलाना सीखते हैं 4 दिन पहले, तो प्रेशर तो नेचुरल आ ही जाएगा। नहीं जानते हैं, हाँ नहीं जानते कि अपर्चर क्या होता है, आईएसओ क्या होता है, कुछ जानते ही नहीं, वाइड एंगल लेंस क्या होता है, और हम फिल्म शूट करने की तैयारी करते, तो सबसे बड़ी मूर्खता यही है। आप जानिए ना, मॉर्फिक लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंस क्या होता है, सब चीज जानिए और बहुत अध्ययन करिए। उसी तरह से हर फील्ड में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, आप पूरा डिटेल में जाकर पढ़ाई करिए और सालों भर मेहनत करिए, और हर दिन सोचिए कि मेरा इम्तिहान कल है। इस भाव से अगर मेहनत करिएगा तो प्रेशर नहीं होगा। लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं पढ़े हो और आने वाले 1-2 महीने में एग्जाम हो, तो आप प्रेशर मत लीजिए। आज से ही आप शुरुआत करिए पढ़ाई की। हो सके कि अगली परीक्षा बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। इसलिए मेरा मानना है कि कोई एक परीक्षा के आधार पर आपकी जिंदगी को कोई निर्धारित नहीं कर रहा था। जैसे समुद्रों की लहर को गिनकर कोई उसकी गहराई नहीं बता सकता है, सूरज की रोशनी को देखकर कोई इसका तापमान नहीं बता सकता है। सिमिलरली कोई भी व्यक्ति का एक परीक्षा अगर गड़बड़ हो जाए, उससे निराश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप एकदम टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स होके पढ़ाई करिए और एकदम कूल माइंड से परीक्षा में जाइए। कभी कभी होता है कि बहुत तैयारी है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, फिर भी बच्चा प्रेशर में रहता है कि कहीं 99.9% लाना है, ये प्रेशर में रहता है, तो ये तो और भी बेकार बात है। और जब ये उम्मीद में जाता है और क्वेश्चन उसको समझ में सब नहीं आता है, तो बच्चा और घबराने लगता है, कान लाल हो जाते हैं, पसीने पसीने, हार्ट बीट बढ़ जाता है, वो सबसे खराब स्थिति है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ है तो सोचिए सबके लिए टफ है,
अगर आसान है तो सबके लिए आसान है। ये सब फिलॉसफी लेके अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, एग्जामिनेशन की तैयारी करिएगा तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं। सर जैसे अभी आपने रिलैक्स होने की बात की कि रिलैक्स हो, पढ़ाई करो और अच्छे से एग्जाम दो, तो ये रिलैक्स होने के लिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वो क्या एक चीज होगी जो आपको रिलैक्स करेगी ताकि आप और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर देखिए सुपर 30 में हम बच्चों को तो ही बताते हैं कि अगर मैथमेटिक्स पढ़ते पढ़ते थक गए हो, रिलैक्स होना चाहते हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लो। और हर सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते तुम थक गए तो थोड़ा राजस्थान पत्रिका उलट के देख लो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अमिताभ जी, I'd like to ask you, ऐसा बोलते हैं कि हम जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो आप इस सेंटेंस से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ओके, तो मानसी, जो हम देखते हैं वो सीखते हैं। देखिए, जो हम देखते हैं उसका हमारी सीख में एक बहुत गहरा और बहुत ही डायरेक्ट प्रभाव तो जरूर पड़ता है। बट अगेन ये कह देना कि जो हम देखते हैं वो सीखते हैं, वो मुझे लगता है ये एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड स्टोरी। उसका असर जरूर पड़ता है। बट मैं ये जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि खासतौर पे बच्चों के लिए या यंग एडोलसेंट्स के लिए कि जो असल में मेरा एक बहुत ही छोटा सा एक कोट है जो मैं कहता हूं कि वी बिकम द स्टोरीज वी एब्जॉर्ब। जो कहानियां हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो वन पॉइंट प्रोसेस नहीं है। हम कुछ देखते हैं, उसमें से हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं, काफी चीजें नहीं समझ में आती हैं। हमारे कुछ अनुभव हैं जो उस देखी सुनी चीजों को प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस करते करते कहीं पे जाकर के बहुत नीचे हमारे अंतर्मन में कुछ चीजें हैं जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जो चीजें हमारे अंतर्मन में एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो ही शायद कहीं पे एक प्रेरणा और वो एक एनर्जी हमें देती हैं जिनसे कि हम हमारे क्रियाकलाप, हमारे रोजमर्रा के एक्शंस या हमारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं उनसे गाइड होते हैं। तो देखने से क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है कि कंपैरिजन में मैं ये कहूंगा कि जो कहानियां हम आत्मसात कर लेते हैं, जो कहानियां हमारे अंदर चली जाती हैं, उतर जाती हैं, उन कहानियों से जरूर हमें काफी सीख और काफी प्रेरणा और काफी दिशा मिलती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। That's a great thought, sir. Thank you, sir. Thank you. आनंद सर, ये तो हम सब जानते हैं कि छोटी उम्र में बच्चे, अब वो पीयर प्रेशर हो या किसी और तरीके का प्रेशर हो, वो बहुत इजीली ले लेते हैं एंड सोचते ज्यादा हैं, फिर मेंटल स्ट्रेस होता है। अब ऐसे में जब छोटी उम्र में बच्चा है, वो पढ़ाई का प्रेशर है या फिर वो क्या सोच रहा है, किस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस है, ये पेरेंट्स को और टीचर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या लगता है आपको, किस तरीके से टीचर्स एंड पेरेंट्स उस बच्चे में क्या थॉट्स चल रहे हैं वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस तरह का प्रेशर वो झेल रहा है वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि आज के तारीख में टीचर्स और साथ साथ पेरेंट्स ही अपने कार्यकलापों से बच्चे में प्रेशर क्रिएट करते। बच्चा तो बेचारा खुश रहता है, खाते रहता है, पीते रहता है, घूमते रहता है, फुटबॉल खेलते रहता है, वीडियो देखते रहता है, उसको कहाँ प्रेशर है। लेकिन पेरेंट्स ऐसा क्रिएशन उनका होता है, ये क्रिएट करते स्थितियों में कि बच्चा डर में आ जाता है। देखो शर्मा जी का बच्चा इतना अच्छा किया, वर्मा जी का इतना अच्छा किया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुमको जीवन में अच्छा करना। देखो तुम्हारे पास एसी है, हमारे पास फैन भी नहीं था, मैं साइकिल से जाता था, तुमको मैं वैन से भेजता हूँ, बताओ तुम नहीं पढ़ रहे हो। बेचारा बच्चा का क्या दोस्त, वो तो पैदा ही हुआ, पिताजी एसी लगाए हुए हैं, अच्छी गाड़ी रखे हुए। तो ये सब चीजें पिता माता और साथ साथ शिक्षक उनको प्रेशर में, ये तो 8वीं क्लास में है, तुम 10वीं में पहुंच गए अभी भी नहीं जानते होती। ये सब बहुत कॉमन चीज है। तो माता पिता को तो सबसे पहले चाहिए, पेरेंट्स को और टीचर्स को, कि प्रेशर क्रिएट ना करें। और साथ साथ उसके अलावे भी एक बात का और ख्याल रखना चाहिए
कि बच्चा कहीं प्रेशर में स्वयं तो नहीं आ रहा है। इसके लिए उनको रिलैक्स करते रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बच्चा घबरा रहा है, अच्छी नींद नहीं ले पा रहा है, हंसता हुआ नहीं है, खिलखिलाता हुआ नहीं है, सीरियस हो रहा है, तो वो इंडिकेशन होता है कि लोगों से कम बात कर रहा है, अकेला में रहना चाह रहा है, एकांत पसंद है, संगीत नहीं सुन रहा है, खेल के मैदान में नहीं जा रहा, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति। अगर बच्चों में ऐसी स्थिति आ रही है तो जरूर उसको निवारण करने का प्रयास करें। एंड सर, अभी जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, टीचर्स को भी समझना चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रेशराइज ना किया जाए उनको। हाँ, एक जितना करते हैं वो तो करना है, बट जैसे आपने एग्जांपल्स दिया कि हमारे टाइम पर तो पंखा भी नहीं था, या हम साइकिल से जाया करते थे, तुम्हें इतना सब कुछ हमने प्रोवाइड किया है, तो कुछ तो पढ़ो, आगे बढ़ो। ये तो एक जगह पर हो गया। बट जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं, पीयर प्रेशर की बात कर लूं मैं, वो दूसरों को देख करके भी बहुत चीजें अडेप्ट करते हैं कि उसके पास तो ये चीज है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पापा ने उसे गियर वाली साइकिल या माउंटेन बाइक दिलाई है, मेरे पास नॉर्मल साइकिल भी नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी है, ये माइंडसेट, इससे कैसे पेरेंट्स निपट सकते हैं? पेरेंट्स को हमेशा ये समझाना चाहिए कि देखो, एक बच्ची की पहचान साइकिल से नहीं होती, एक बच्चे की पहचान उसके कार से और उसके स्टेटस से नहीं होती। एक बच्चे में कितना टैलेंट है, इससे बच्चे की पहचान होती है। क्लास में कितना अच्छा परफॉर्म करता है, इससे उसके पहचान होती है। तुम क्या हो, तुम्हारे पास साइकिल कैसी है, तुम्हारे पास कपड़े कैसे हैं, तुम्हारे पास रूम तुम्हारा कैसा है, ये तो पेरेंट्स का दिया हुआ है। तुम कैसे हो, तुम्हारा नाम बबलू है, बबलू की क्या पहचान है, उसकी क्या करामात है, इस पर फोकस करो बेटा। तुम्हारी पहचान ही दुनिया याद रखेगी। मेरा दिया हुआ सब भ्रम है, जो सत्य है तुम्हारी मेहनत, कठोर परिश्रम और तुम्हारी प्रतिभा। ये बातों को अगर हम समझाते रहे बच्चों को तो कभी प्रेशर नहीं। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। बॉलीवुड में मूवीज बननी चाहिए पीयर प्रेशर पर, या आपके नजरिए में पीयर प्रेशर कैसे रिड्यूस कर सकता है टेलीविजन या सिनेमा? बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बनती रही हैं। 3 इडियट बनी, जिसमें दिखाया गया कि बच्चे पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और भी बहुत सारी फिल्में दिखाया गया कि कमजोर बच्चा है फिर भी उसको फुटबॉल खिला के कैसे अमिताभ बच्चन झुंड फिल्म में उसको अच्छा कर देते हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग फिल्म भी बनते रहती है कि बच्चा प्रेशर में न रहे बल्कि मेहनत पर विश्वास रखे। तो ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए, और सच मानिए तो ऐसी फिल्में सुपर हिट होती है। तो मेरा भी निवेदन है बॉलीवुड के लोगों से, तमाम लोगों से, कि भाई आप जरूर ऐसी फिल्म बनाएं, आपकी फिल्म भी सुपर हिट होगी, बच्चों में मोटिवेशन भी होगा, बच्चे उससे फायदा भी लेंगे और हमारा देश सच में विश्व गुरु बनेगा। अच्छा आनंद सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ बनने के लिए। पेरेंट्स ने बोला है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं उन स्टूडेंट्स को कि तुम बेटा पढ़ाई के लिए नहीं, या तुम्हारा कोई और टैलेंट है, या फिर होता है कोई एकेडमिक्स में अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, तो ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, प्रतिभा परिश्रय का मोहताज नहीं होती है। उसमें इतनी ताकत होती है कि धारा के विरुद्ध बहते हुए भी अपना चमत्कार दिखाती है, पत्थर का सीना तोड़ देती है और बताती है कि मुझ में प्रतिभा है आरजे बनने की, जैसे आप लोग बन गए। तो प्रतिभा आइडेंटिफाई नहीं होती, सन्नाटे में भी उसकी आवाज आती है। इसलिए जिसमें जैसे हमारे यहाँ सुपर 30 में कोई बच्चा पढ़ा, बहुत अच्छी कहानी लिख देता है, बहुत अच्छी कविता लिखता है, तो हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई IIT के लिए तो आ गए, लेकिन ये कहानियां लिखना जारी रखो, कविता लिखना जारी रखो, अच्छे गीत गाते हो तो अब टीचर्स डे बनाते हैं, उसी में कोई आरजे बन जाती है बच्ची, कोई बन जाता है और प्रोग्राम कर देते हैं, उसमें ये टैलेंट होता है। तो टाइम टू टाइम टैलेंट स्वयं आता है। आप लोग भी इतना अच्छी आरजे है, जरूर स्कूल में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती होगी। तो प्रतिभा अपने आप निखर कर आती है, उससे आवाज आती है। शिक्षक का, पेरेंट्स का काम है कि जो बच्चों में प्रतिभा है उसको निखरने का अवसर दिया जाए। एक बीज है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, एक वृक्ष बनने की संभावना है। तो उस वृक्ष बनने के लिए बीज को जमीन देने की जरूरत है, उसमें खाद पानी देने की जरूरत है, और समय समय पर कीटनाशक दवाओं का भी छिड़काव जरूरी है, गंदगी से समाज के बचाव। आनंद साहब, कई सारे लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं आपसे चैट बॉक्स में। सो कुशल ने पूछा है, आनंद सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे लगाया जाए? देखिए, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है
और लगाने के लिए हर आदमी सोचता है, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि आप पढ़ाई समझते नहीं। अगर जिस दिन आप पढ़ाई समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा और मन लगने लगेगा। रुचि जागृत होने के लिए, मन लगने के लिए पढ़ाई की समझ होनी चाहिए। और फिर पढ़ाई समझे कैसे? तो मान लीजिए आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, ऐसा प्रयोग हमने न जाने कितने बच्चों पर किया। तब आप क्या करिए, 9th 8th 7th 6th देखिए कहां से आप पढ़ाई समझ रहे, वहां से आप पार्ट टाइम में इसको समझने का धीरे धीरे प्रयास करिए। और अगर ऐसा करते हैं तो पढ़ाई जरूर समझ में आएगी और मन लगेगा। तो समझने का सब्जेक्ट प्रयास करिए, बेसिक फंडा है। करेक्ट सर। अमिताभ सर, वत्सला वशिष्ठ ने आपसे पूछा है, हाउ टू मेक योर ओन फुटप्रिंट्स रादर देन फॉलोइंग अदर्स। पीपल मेक फन ऑफ वंस हु चूज समथिंग डिफरेंट। तो अगर कोई कुछ डिफरेंट प्रोफेशन या चॉइस लाइफ में डिसीजन लेता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? Okay, nice. I'm unmuted now. Thank you very much. So, Vatsala, देखिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि भाई प्लीज बी प्रैक्टिकल। एक पैशन, एक हॉबी, एक विजन, एक एस्पिरेशन हर की लाइफ में मुझे लगता है होना जरूरी है, होना भी चाहिए। लेकिन उस पैशन, उस हॉबी, उस क्वालिटी को मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई ना कोई एक फोरम एक टाइम पे एब्जॉर्ब करता है, उसको शेप देता है, उसको एक चैनल, एक डायरेक्शन देता है। तो वापस मैं यही कहूंगा कि मैं पढ़ रहा था, कंप्यूटर साइंस किया, मैथमेटिक्स किया, जापानीज पढ़ रहा था, फोटोग्राफी कर रहा था, लेकिन अगर एफटीआईए ने मुझे एज ए सिनेमेटोग्राफर नहीं उठा के ट्रेन किया होता तो शायद मैं एज ए प्रोफेशनल फिल्म मेकर नहीं बनता, मैं शायद कुछ और कर रहा होता। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, Anand ji. We'd like to conclude this very insightful session. कुछ अगर एंड में आप शेयर करना चाहें अपने कोई थॉट्स हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, दोनों आरजे का शुक्रिया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने कार्यक्रम किया। मैं अपने दोस्तों को, सुनने वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। आपके जीवन में कई बार निराशाएं आएंगी, ऐसा लगेगा सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है, अंधेरी होती है, सवेरा उतना नजदीक होता है। इसी भाव से मेहनत करते रहिए, आने वाला कल हमारा होगा और भारत सच में बड़ा राष्ट्र बन के उभरेगा। अमिताभ सर, यस, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान पत्रिका फैमिली सबको बहुत बहुत हार्दिक आभार अभिव्यक्त करता हूं। हमें ये मौका मिला आपसे बात करने के लिए और आपके जो रीडर्स हैं उनसे जुड़ने के लिए। आनंद सर ने तो बहुत ही सुंदर शब्दों में पूरा एक निचोड़ रखा है, उसके ऊपर मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कह पाऊंगा। So once more, with my deep gratitude to you and everyone. Thank you so much, sir.